you have already know about the exchange of gases that is happening due to their partial pressure gradients. Now we will talk about the transport of oxygen. ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम इसको अब देख रहे हैं. तो these are the today's objectives that we will discuss one by one, that how oxygen is being transported and in which forms in the blood especially and in the tissues. Then we have to discuss the partial pressure of oxygen and the amount of oxygen physically in the dissolved. Little bit overview, you have already gone through this detail in the exchange of gases. Then they describe the chemical combination of oxygen with the hemoglobin. To that we will look into another into a curve that is known as oxygen hemoglobin dissociation curve. Then we have to see its shape and the factors that will affect the oxygen dissociation curve. So first we will talk about the types of oxygen that are being transported in the blood and the tissues. Okay, so mostly oxygen is transported in two forms, dissolved and hemoglobin bound oxygen. ठीक है, तो dissolved form है, और you can say this कि this is the chemical form. ठीक है, this dissolve जो है हमारी physical form होगी, and the form that is bound to the hemoglobin would be the chemical one. So the dissolved form of oxygen, it makes around 3% of the total oxygen content. ठीक है, 3%, or if you're talking in milliliters of blood, ठीक है, तो it will make around 1.34 ml. ठीक है, 1.34 ml or 3% of oxygen is carried in the dissolved physical form. ठीक है, as oxygen, you know, it is not very much soluble in the fluid, so that's why we are getting only this much percentage of the dissolved oxygen in the blood. ठीक है, so the function of the dissolved physical form of the oxygen, or when we talk about the carbon dioxide, the dissolved form is responsible for maintaining the partial pressure of the gases. ठीक है, तो मेंटेन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस. इसके बाद जो है, अच्छा, इसके अलावा जो पार्शियल प्रेशर मेंशन करने में जो है, मेंटेनेंस में डेड स्पेस का भी रोल आ रहा है. तो मोस्टली जो है डिसॉल्व फॉर्म ऑफ गैसेस इज रिस्पांसिबल फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस. Now the second form of the oxygen, that is the chemically bound to the hemoglobin. ठीक है, हमने physical की बात की, that is around 3%. Now the chemically bound oxygen that is bound to the hemoglobin, it makes around 97% of the oxygen content. ठीक है, तो इसमें जो है ये ऑक्सीजन कंटेंट को इसमें रख रही है. अभी जो एक कैमरा ऑन हुआ है, ठीक है, अब उस पे तो मैं बाद में बात करती हूँ कि नाम किसी और का था और दिखाई मुझे कुछ और दिया है, तो सोच समझ के अपनी कैमरा ऑन किया करो. Hemoglobin bound oxygen, it makes around 97% of the oxygen content. ठीक है, तो mostly the major form that is being carried in the blood is the hemoglobin. ठीक है, क्योंकि dissolved form जो है हमारे पास that was only making the 3%, that won't be sufficient enough for the exchange of gases. ठीक है, या टिश्यू को सप्लाई करने के लिए हमारे पास वो इतनी ज्यादा highest amount नहीं है. So for that we are requiring highest amount of the oxygen that could be utilized by the tissues. ठीक है, so that is the 97%. Now as you know the concentration of the hemoglobin, ठीक है, in male and female, ठीक है, female में हमारे पास जो है 14 to 16 milligram per deciliter तक लेते हैं. In male we take around 16 to 18 gram per deciliter तक लेते हैं. तो concentration of the hemoglobin in blood is very high.
ठीक है, 15 ग्राम हम इसको एवरेज में ले रहे हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूटिंग द अबाउट 1/3 ऑफ द मास ऑफ इन erythrocytes and about 15% of the mass of the blood. Now we have to see how much oxygen would be carried by the hemoglobin. If you recall the structure of the hemoglobin, you know that it has four moieties, ठीक है, four heme moieties and globin chains were present in the hemoglobin molecule. ठीक है, and each heme moiety was capable of binding with one molecule of oxygen. So total one molecule of hemoglobin was can carry 4 molecules of oxygen. Okay. Now, if we are talking about the concentration of oxygen in terms of milligram per milligrams, okay, so each gram of hemoglobin can bind about 1.34 ml of oxygen. ठीक है, तो ऑक्सीजन का इतना कंटेंट जो है is carried by each gram of the hemoglobin. As we have discussed how much hemoglobin content is present, say for example we are taking the average, that is 15 gram per deciliter, so it will make around 19.1 ml. ठीक है, या हम say for example 18 तक जा रहे हैं, जितना भी कंटेंट, it depends upon the hemoglobin concentration of a person, whether male or female, तो उसके लिहाज से फिर हम इसको करते हैं. तो you will, if you will multiply this content with the content of the hemoglobin, it will give us 19 ml. ठीक है, जो कि arterial blood है, systemic circulation में. फिर जो है जब आप वेनस ब्लड में आते हैं, तो वेनस ब्लड में इट अमाउंट बिकम 14.1 ml पर ग्राम ऑफ दी ऑक्सीजन हो जाएगा. अब ये जो डिफरेंस आया 5% का, ठीक है, या 5 ग्राम मिलीलीटर्स का, दैट इज एक्चुअली नोन एज यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट. ठीक है, मतलब कि हमारे जो आर्टेरियल ब्लड वाज एबल टू कैरी, अब ये ईच ग्राम की मैंने बात की थी, अब वी नो कि टोटल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज 15 ग्राम पर डेसिलीटर, so that means it is capable of carrying 19.1 ml of the oxygen content in the arterial blood. When the arterial blood is passing through the tissues, oxygen would be utilized, but only 5 ml oxygen would be taken out of that content. ठीक है, remaining 14.1 ml will be returned back to the venous circulation. ठीक है, तो venous circulation में जा रहा है. तो अब इसमें out of 19 ml, only 5 ml was being utilized by the tissue. That is known as utilization coefficient. ठीक है, तो 25% जो ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है वहां पे, that is the utilization coefficient. Now, there are certain points or facts regarding the oxygen binding by the hemoglobin. ठीक है, अब this is the structure of the hemoglobin. ठीक है, when the oxygen is combining with the hemoglobin, that would be known as oxyhemoglobin. When oxygen is dissociating from the hemoglobin molecule, that will lead to formation of deoxyhemoglobin. ठीक है, now its binding is allosterically cooperative. Now, the term allosteric means that if one molecule is binding to any protein, okay, it will make conformational changes in the molecule and increases the affinity for the next molecule. Okay, as we have discussed already, that hemoglobin molecule is capable of carrying 4 oxygen molecules. Okay, so once one oxygen molecule is going to combine with the oxygen, ठीक है, it will increases the affinity for the second oxygen molecule, then second will increase the affinity for the third one, and the third one will increase the affinity for the fourth oxygen molecule. ठीक है, so this is the allosteric cooperation of the oxygen and the hemoglobin. ठीक है, तो oxygen binding to any heme group changes the structure of the entire molecule. कोई भी एक मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होगा, इट विल एंटायरली चेंज द एफिनिटी फॉर द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स. देन द ईच ऑक्सीजन बाउंड प्रमोट्स बाइंडिंग ऑफ नेक्स्ट ऑक्सीजन. ठीक है, ये जो अभी बात हमने डिस्कस की. नाउ दिस रिजल्ट इन अ वेरी स्टीप ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो हम आगे बात करेंगे. अश्विन, कोई क्वेश्चन है? सॉरी मैम, गलती से हो गया.
ओके, एक मिनट. You have to keep these facts in your mind. Then we'll discuss about the now oxygen hemoglobin dissociation curve. ठीक है. अब oxygen hemoglobin dissociation curve, we simply say this is the relationship between the percent saturation of our hemoglobin and the with the oxygen content. ठीक है. Percent saturation of the hemoglobin with the partial pressure of the oxygen. ठीक है. You already know that partial pressure is directly proportional to the हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन. जितना आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ही उसमें ऑक्सीजन कंटेंट हीमोग्लोबिन का बढ़ता जाएगा. ठीक है. तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, दिस इज एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन द हीमोग्लोबिन सैचुरेशन. ठीक है, with the partial pressure of oxygen. Ab hemoglobin saturation means get that if you see here, this is the hemoglobin molecule. It has 4 oxygen molecules. Over here we say this is fully saturated because it is carrying all 4 oxygen, or we say it's all sites for attaching with the oxygen have been occupied. ठीक है. तो ये सैचुरेशन दिखा रहा है. यहाँ पे थोड़ा जो है 75% यहाँ पे सैचुरेटेड है, फिर यहाँ पे 50% सैचुरेटेड है. इस पे अभी हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. Simply you will say that it dictates the relationship between hemoglobin saturation, percent hemoglobin saturation with the partial pressure of oxygen. ठीक है. अब हमें देखना है कि जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा उसके लिहाज से हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कितनी हो रही है. नाउ दिस hemoglobin dissociation curve, this is sigmoid in shape. ठीक है. This is sigmoid or S shape. अब ये shape इसका क्यों आ रहा है? It depends upon the affinity of the hemoglobin for the oxygen, जो कि वेरी करेगी जब हम पल्मोनरी कैपिलरीज में इसको देखेंगे, एंड इट विल वेरी एट द टिश्यू लेवल. ठीक है. सिस्टमिक कैपिलरीज और पल्मोनरी कैपिलरीज में एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज varying for at different partial pressures. ठीक है. So that's why this curve is not a straight one. It is showing the sigmoid shape because of the changing affinity of the oxygen, hemoglobin for the oxygen. Now we divide this curve into 2 phases, or we say 2 portions. One is plateau phase. ठीक है. And other is steep phase or steep portion. ठीक है. This one is the steep portion and this is the plateau phase, जो कि इस तरह हमारे पास आ रहा है. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि हाउ मच हीमोग्लोबिन इज बाउंड टू दी ऑक्सीजन और हाउ मच ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरिंग. एक रेंज हम ले रहे हैं 0 to 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो कि स्टीप पोर्शन में आ रही है. फिर बिटवीन 60 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमारे पास प्लेटो फेज डिटरमिन कर रहा है इसको. ठीक है. तो अब ये 2 इसके पोर्शंस हैं. नाउ वी हैव टू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज 2 पोर्शंस और फेजेस ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. अच्छा, अब इसमें इन द प्रीवियस स्लाइड आई कैन शो यू हियर दैट दिस इज द plateau phase and this is the steep portion. The plateau phase is actually determining the partial pressure of oxygen in the pulmonary capillaries. ठीक है. And it is around between 60 to 100 millimeter of mercury. ठीक है. अच्छा, over here you can see कि at 100 millimeter of mercury मतलब कि जो है हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन है still 97% ऑक्सीजन इज सैचुरेटेड और हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड. ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन इज दैट व्हाई इट इज नॉट इट इज 100%, एज वी आर सेइंग कि भाई जितना पार्शियल प्रेशर हम बढ़ाएंगे उतना ही फिर सैचुरेशन भी ज्यादा होगी. तो यहाँ पे हमारे पास 97% सैचुरेशन क्यों नहीं हो पा रही? एनीवन, इफ एनीवन हैव आइडिया अबाउट इट, यू कैन शेयर योर आइडिया हियर. क्या रीजन हो सकता है इसमें? पार्शियल प्रेशर कम हो गया. नहीं, पार्शियल प्रेशर कम होगा तो फिर हमारी सैचुरेशन भी कम होगी. अब यहाँ पे तो पार्शियल प्रेशर इज 100 पे, तो ये 100% होनी चाहिए ना सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन, बट इट इज अराउंड, यहाँ पे अगर देखो इट इज 97% है.
ठीक है, तो इसमें हमने ये देखना है कि व्हाई इट इज 97%. Reason is that कि when you go through the pulmonary circulation, ठीक है, तो अब इसमें से जो 3% हमारे पास जो ब्लड है, it directly enters into aorta, ठीक है, without going into the pulmonary circulation, जहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो नहीं जा रहा. अब उसमें क्या होता है कि एओर्टा से जो है, मतलब कि डायरेक्टली फ्रॉम द राइट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल, ब्लड इज गोइंग टू द एओर्टा थ्रू ब्रोंकियल वेन्स, ठीक है, ब्रोंकियल वेन्स के थ्रू जो है, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज एंटरिंग इनटू द एओर्टा, तो वो उसको मिक्स कर रहा है. इस वजह से इंस्टेड ऑफ 100% सैचुरेशन, द ब्लड इज 97% सैचुरेटेड, ठीक है, तो ये यहाँ पे रीजन है, इस वजह से हमें 100% यहाँ पे नहीं आ रहा. अच्छा, अब इसमें जो है ये जो प्लेटो फेज है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हमें एक सेफ्टी मार्जिन देता है. सेफ्टी मार्जिन इन अ सेंस कि इफ there will be a drastic change or little change in the partial pressure of the oxygen, ठीक है, oxygen will be readily available to the tissues, ठीक है, and but the saturation of the hemoglobin will be not that much drastically affected, ठीक है, कि मतलब कि अब 100 पे हम कह रहे हैं 97% है. इसी तरह अगर हम देखें कि जो है 60% पे भी अगर हम आ रहे हैं, तो स्टिल वी हैव 85% ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द हीमोग्लोबिन, ठीक है, मतलब कि 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का डिफरेंस आ गया पार्शियल प्रेशर का, बट स्टिल वी हैव हाउ मच ऑक्सीजन बाउंड टू दी हीमोग्लोबिन अराउंड, इसका पार्शियल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 85%, ठीक है, तो इतना उसमें फिर भी जो है 70 पे आएंगे तो ये 90% सैचुरेटेड होगी. तो इन स्पाइट ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मिनिमल चेंज विल हैपन टू द सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन. अब ये सेफ्टी मार्जिन हमें कैसे हेल्प कर रहा है कि इफ यू आर गोइंग टू हाई एल्टीट्यूड, वहां पे क्या होगा, हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो ड्रास्टिकली डिक्लाइन, ठीक है, तो उसमें जो है ऑक्सीजन विल रेडिबली अवेलेबल बिकॉज ऑफ द प्लेटो फेज ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है. फिर जो है हम स्टीप पोर्शन पे आते हैं. नाउ स्टीप पोर्शन इज शोइंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द सिस्टमिक कैपिलरीज, मतलब टिश्यू लेवल पर हम आ गए हैं. तो यहाँ पे जो है इफ यू सी के जो है हमारा पार्शियल प्रेशर बिटवीन 0 to 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है. तो अगर हम 60 पे आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, प्लेटो फेज में ड्रास्टिक चेंज इन द पार्शियल प्रेशर वाज डूइंग द मिनिमल चेंजेस इन द इन दी पार्शल, मतलब कि ड्रास्टिक चेंज इन दी. सैयद उमर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक्सप्लेन इट. ये बार बार जो कैमरा ऑन ऑफ कर रहे हैं, कोई मसला है सैयद उमर? मैम मेरा कैमरा तो ऑफ ही है. अच्छा, फिर शायद मुझे हेलुसिनेशंस हो रही हैं जो बार बार तुम्हारा कैमरा ऑन हो रहा है. तो मैम मेरा फोन तो सामने दीवार पे मतलब मैंने फिट किया हुआ है, तो हैंड फ्री ठीक है, से मैं आपकी तुम्हें आवाज है. नहीं, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी, फिर मुझे एक्सप्लेन करना कि ये कैसे ओके हुआ मैम. ऑन. शायद कोई ओके मैम. जिन तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, तो अब दुआएं पढ़ लो. तो अब इसमें, हाँ, प्लेटो फेज में आई वाज सेइंग कि drastic change in the partial pressure was doing minimal change in the saturation of hemoglobin, ठीक है, but in steep portion, slight change in the partial pressure will lead to drastic change in the hemoglobin saturation, ठीक है, ये उसका उलट हो जाएगा. अब इफ यू सी एट 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है हमारे पास यहाँ पे, अब यहाँ पे उसकी सैचुरेशन थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, ये 90 हो रहा है, ठीक है, फिर अगर हम 60 से 40 तक आ रहे हैं, तो 40 तक भी जो है फिर 75% तक आ जाएगी. देन इफ एट 25% जो है हमारे पास, यहाँ पे ये 25% पे हमारे पास ये 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है. अच्छा, इस चीज को हम कहते हैं P50. एक टर्म हम यूज करते हैं P50. P50 denotes that even at partial pressure of oxygen around
25 to 27%, 50% hemoglobin is saturated. ठीक है, कि यहाँ पे जो है इसमें स्टिल 2 molecules will be attached or 1 molecule will be attached that can take part in the oxygen exchange. ठीक है, तो ये दोनों की सिग्निफिकेंस है स्टीप एंड दी प्लेटो फेज की। तो ये प्लेटो फेज है हमारा, दिस इज दी स्टीप फेज। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, टू द राइट एंड लेफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, दिस इज द राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी एंड दिस इज द लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दिस इज द राइटवर्ड शिफ्ट। अब इसमें हमने सर्टेन फैक्टर्स डिस्कस करने हैं दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग दी कर्व ईदर टू राइट और टू द लेफ्ट। ठीक है, मतलब कि प्लेटो फेज या स्टीप पोर्शन की तरफ आएगा। अच्छा, जब भी हम राइटवर्ड शिफ्ट की बात कर रहे होते हैं तो इसमें ये होता है कि राइटवर्ड पे जो है एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन वुड बी लो फॉर द हीमोग्लोबिन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन इज फुली सैचुरेटेड, तो यहाँ पे इस वजह से इसकी जो एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन इट इज लिटिल बिट लोअर। लेकिन इफ वी कंपेयर इट विद द लेफ्ट साइड, ठीक है, स्टीप पोर्शन में, अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन की एफिनिटी एनहांस हो जाएगी फॉर द ऑक्सीजन, मतलब कि दोनों तरफ ये ऑक्सीजन टिश्यू को दी जा सकती है, बट एट द राइट साइड, मतलब जब पल्मोनरी कैपिलरीज में है, यहाँ पे इजीली वो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को रिलीज करेगी फॉर द tissues, but when we are moving to the left side, hemoglobin won't give away oxygen that much with ease as it was doing on the right side. ठीक है, तो दोनों तरफ एफिनिटी, तो राइट साइड पे जब हम बात कर रहे हैं तो एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज डिक्रीजिंग एंड ऑन द लेफ्ट साइड इट इज इंक्रीजिंग फॉर द ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब इसमें फिर हमने इसके फैक्टर्स इस तरह डिवाइड करने हैं। तो अब ये हैं फैक्टर्स। ठीक है, अब कोई भी पहले जो है हम राइट वर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट वही फैक्टर्स फिर हम अगर उल्टे कर देंगे तो हमारी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में आएगा एडिशनल हीमोग्लोबिन एफ की बात हम इसमें करेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फैक्टर्स दैट आर एक्चुअली मूविंग द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स द राइट। इसमें हमारे पास एक तो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपके माइंड में रखना है, pH, टेम्परेचर, 2,3 dpg। व्हाट इज 2,3 dpg? एनीवन? मैम डाइफॉस्फोग्लिसराइड कहाँ बनता है ये जी? हाँ जी वसीम, एंजाइम नहीं है, नॉट, वो सही बता रहे हो मुबीन, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कहाँ पे बनता है ये? किस जगह पे बन रहा है? इंक्रीज टू 3 dpg, डायफॉस्फोग्लिसरेट या बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं इसको। इट इज दी बाय प्रोडक्ट ऑफ दी मेयरहोफ एम्बेडेड पाथवे, जो कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है तुम लोगों का, वहां पे ये बाय प्रोडक्ट बनता है। इसकी वजह से जो है इट एक्चुअली इट डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है, फॉर द ऑक्सीजन, इसकी वजह से ये होता है। इसी तरह जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इफ इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इट विल डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है दैट मींस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच डिक्रीज होगी। इसका भी इफेक्ट यही होगा कि इट विल डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर द हीमोग्लोबिन, सो इट विल मूव द कर्व टुवर्ड्स द राइट। लाइकवाइज टेम्परेचर इज डूइंग द सिमिलर थिंग, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोटीन इन नेचर है तो उसमें चेंजेस आ रही हैं उसके स्ट्रक्चर में, तो वो उसकी एफिनिटी को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये बात की कि effect of partial pressure of carbon dioxide and hydrogen ion on affinity of the hemoglobin for the oxygen is known as Bohr's effect. ठीक है, it is known as Bohr's effect। आगे वो दोबारा डिस्कस करते हैं उसको। So these are the certain factors that will move the oxygen hemoglobin dissociation curve to the rightward। मतलब rightward shift में ये हो रहा है कि affinity of hemoglobin for the oxygen is decreasing,
डिक्रीज हो रही है, तो दैट मीन्स ऑक्सीजन कैन इजीली बी गिवन टू द टिश्यूज, ठीक है, ऑक्सीजन कैन इजीली बी गिवन टू द टिश्यूज। नाउ इफ वी आर मूविंग द कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है हमारी, यहाँ पे ये होगा कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट में हमारे पास, यहाँ पे ये हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, दिस वन वाज द राइटवर्ड शिफ्ट। अब इसमें इजी वे टू रिमेम्बर द फैक्टर इज कि पहले ये सारे फैक्टर्स तुम लोगों को याद हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, पीएच है, टेम्परेचर है एंड 2,3 डीपीजी। दीज फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का। कम या ज्यादा हो रहे हैं वो अब तुम लोगों ने उसको याद रखना है कि जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाज इंक्रीजिंग एंड लीडिंग टू द शिफ्ट ऑफ कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट राइट। अगर हम पार्शियल प्रेशर को कम कर देंगे तो कर्व विल मूव टू द लेफ्ट साइड। इसी तरह पीएच को अगर हम डिक्रीज कर रहे थे तो इट वाज मूविंग टुवर्ड्स द राइट। अगर हम पीएच को एनहांस कर दें, इंक्रीज कर दें, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम कर दें, तो यहाँ पे पीएच इंक्रीज, पीएच विल move the curve towards the left side, ठीक है। इसी तरह like a temperature was in a increased temperature was responsible for rightward shift, likewise leftward shift will be done on decreasing the temperature, ठीक है। 2,3 डीपीजी जो है वो एफिनिटी को कम कर रहा था, ठीक है। अब स्पेशली इन दी बीटा चेन्स में, ठीक है, बीटा और डेल्टा चेन्स में ये करता है। गामा चेन्स के लिए इसकी एफिनिटी कम होती है 2,3 डीपीजी की, तो इस वजह से वो उसके साथ इतना बाइंड नहीं होगा। तो अब हीमोग्लोबिन स्पेशली एफ में भी जो है, हीमोग्लोबिन एफ में हमारे पास जो है जो गामा चेन्स हैं दे हैव हाईएस्ट एफिनिटी फॉर दी हीमोग्लोबिन, यू ऑलरेडी नो दैट। तो इस वजह से ये फैक्टर भी जो है इट विल मूव द शिफ्ट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के एडिशनली विल एड द हीमोग्लोबिन एफ, ठीक है। एक और फैक्टर भी है जिसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का कर्व कैन मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का विल आल्सो मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन फॉर द हीमोग्लोबिन इज 200 टाइम्स मोर देन द ऑक्सीजन, ठीक है, 200 टाइम्स मोर देन द ऑक्सीजन। तो ये उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो भले हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल होगी but this curve will be moved towards the left because carbon monoxide has highest affinity for the hemoglobin, ठीक है। So these are the factors that are moving the curve towards the right and left। अच्छा, rightward shift में affinity of hemoglobin was decreasing for the oxygen, ठीक है, तो उसमें easily वो tissues को हम दे पा रहे थे ऑक्सीजन। but the leftward shift में इतनी आसानी से हम ऑक्सीजन नहीं डिलीवर कर पाते towards the tissue because of the highest affinity of the hemoglobin towards the oxygen। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे जो है अगर ऑक्सीजन मूव कर रहा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का, ठीक है। तो अब इफ वी सी के प्लेटो फेज में जो हमने बात की थी कि इफ हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो स्टिल इफ द पार्शियल प्रेशर इज डिक्रीजिंग अप टू 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, तो हमारे पास जो है स्टिल एट दिस पॉइंट जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इज अराउंड जो है 85% है, ठीक है। तो अभी भी इसके पास मतलब इसमें से एक मॉलिक्यूल यूटिलाइज किया जा सकता है ऑक्सीजन का, स्टिल हीमोग्लोबिन हैज 3 मॉलिक्यूल्स। तो इस वजह से उसमें वो उसकी एफिनिटी को इतना नहीं ज्यादा अफेक्ट करेगी, ठीक है, कम होगी यहाँ पे एफिनिटी। लेकिन अगर इसकी एफिनिटी को, इस मॉलिक्यूल की एफिनिटी को इसके साथ कंपेयर करो तो इसकी एफिनिटी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इट हैज ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब इसके पास दूसरे रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स के लिए क्योंकि साइट अवेलेबल है तो यहाँ पे इसकी एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो राइटवर्ड शिफ्ट में एफिनिटी कम हो रही है हीमोग्लोबिन की फॉर द ऑक्सीजन, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन इज इंक्रीजिंग। This is another slide showing the same thing that have been discussed already कि leftward shift में और rightward shift में, right shift में क्या है
कि for a given partial pressure, hemoglobin will be less saturated. For a given drop from the arterial partial pressure, more oxygen will be unloaded from the hemoglobin. ठीक है, यूजफुल फॉर अनलोडिंग हीमोग्लोबिन. अनलोडिंग का मतलब कि उसमें से हम रेडीली ऑक्सीजन को इजीली ऑक्सीजन को अनलोड करके टिश्यूज को दे सकते हैं. लेफ्ट वर्ड शीट में ये इसका अपोजिट हो जाएगा कि इसमें हमें मोर सैचुरेशन चाहिए होगी. मुबीन एंड में सवाल आप पूछना. फॉर गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हीमोग्लोबिन विल बी मोर सैचुरेटेड. ठीक है, सैचुरेशन के मतलब ये कि इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो है ये चीज डिस्कस होगी, ये सैचुरेशन आ जाएगी. ठीक है, कि एफिनिटी ज्यादा होगी फॉर दी ऑक्सीजन. For a given drop from the arterial partial pressure of oxygen, less oxygen will be unloaded. ठीक है, कि टिश्यूज को जो है इजीली ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होगी एज कंपेयर टू राइट शिफ्ट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन कम थी, लेफ्ट साइड पे अब इसकी एफिनिटी ज्यादा है, तो इट इज यूज फॉर लोडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, फैक्टर्स ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. फैक्टर शिफ्टिंग के इसमें जो है, और इसमें एडिशनली राइट वर्ड शिफ्ट में यू कैन आल्सो मेंशन अडल्ट हीमोग्लोबिन वर्सेस फीटल हीमोग्लोबिन. फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रही थी. ठीक है, तो ये इसमें एक फैक्टर आ जाएगा. फिर जो है फैक्टर शिफ्टिंग टू द लेफ्ट, द इनवर्स ऑफ दीज दोज अबव फैक्टर्स, मतलब इन सारे फैक्टर्स को रिवर्स कर दो तो दे विल मूव द कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट. एडिशनली हीमोग्लोबिन एफ मैंने डिस्कस की, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एज वेल एज मेथेमोग्लोबिनीमिया. ठीक है, मेथेमोग्लोबिनीमिया में क्या हो रहा है, एनीवन? हीमोग्लोबिन की टाइप्स तुम लोगों ने पढ़ी है ना ऑलरेडी, तो इसमें क्या होता है मेथेमोग्लोबिन? इसको नहीं पता? वैसे भी तुम लोगों की हेमेटोलॉजी में तो हाल पूरा था. जी फातिमा, डू यू नो अबाउट दैट मेथेमोग्लोबिन? अच्छा, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन हटा दिया था उसको. सॉरी, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम, उसमें जो आयरन है अपने फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फेरस से फेरिक फेरिक फॉर्म. फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, शाबाश. उसमें जो फीरियस फॉर्म होता है वो जी. ऑक्सीडाइज होता है, मतलब फेरिक फॉर्म में होता है जो हमारा आयरन एटम होता है. ठीक है, सही. दोनों फातिमा और नफीसा बोथ आर राइट कि इसमें जो है फेरस फॉर्म इज कन्वर्टेड टू फेरिक फॉर्म. अब फेरिक फॉर्म इज अनएबल टू यूटिलाइज दी ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन अगर यूटिलाइज नहीं होगी, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा कर्व जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज दी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट. अच्छा, अब ये दो इफेक्ट्स हैं. ठीक है, अब एक मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया, बोहर्स इफेक्ट. Bohr's effect is simply showing the effect of partial pressure of carbon dioxide and the concentration of hydrogen ion on the affinity of hemoglobin for the oxygen. अगर हम partial pressure of oxygen increase कर रहे हैं तो affinity for the oxygen was decreasing. ठीक है, this is the Bohr's effect. हेल्डन इफेक्ट में उल्टा उसको कर दो कि हेल्डन इफेक्ट में क्या हो रहा है कि व्हेन दी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, इस मतलब कि इसमें लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में कि जब उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर हम कम करते जा रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगी तो हीमोग्लोबिन एफिनिटी उसकी बढ़ेगी. ठीक है, इट विल इजीली डिस्प्लेसेस द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन. ठीक है, एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन विल बी इंक्रीज. दिस इज हेल्डन इफेक्ट. ठीक है, तो बोहर्स एंड हेल्डन इफेक्ट, ये वाला इफेक्ट दोबारा आएगा जब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो सिंपली इसमें हमने सिंपली ये देखना है कि बोहर्स इफेक्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं. हेल्डन इफेक्ट में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो कि उल्टा ही कर रहा है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर दी कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, सो दीज बोथ इफेक्ट्स शुड बी नोन बाय यू. ठीक है, ये बहुत पूछे जाते हैं, और स्पेशली ये सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के, इसके जो दो का पोर्शंस हो गए, स्टीप एंड प्लेटो फेज, उनकी सिग्निफिकेंस तुम लोगों को पता होनी चाहिए. ठीक है, और व्हाट वुड बी द फंक्शन ऑफ डिसॉल्व फॉर्म. डिसॉल्व फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन वाज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, while the
केमिकल बाउंड फॉर्म जो है वो टिश्यूज में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो मेनली हमें क्योंकि वही फॉर्म चाहिए होगी जो कि टिश्यूज को इजीली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अच्छा, नाउ रिगार्डिंग द your assignment, I have already mentioned the topics in the physiology discussion board on the LMS, ठीक है। You can go and see those topics. अच्छा, डेट मैंने चेंज कर दी है, अब इंस्टेड ऑफ दिस वीक अब कमिंग वीक में जो है वेडनेसडे को 22 सितंबर को, ठीक है, योर असाइनमेंट विल बी कंडक्टेड। दीज आर द टाइमिंग्स 4 to 4:10 PM, ठीक है। तो रिमेंबर दिस डेट एंड गो थ्रू द टॉपिक्स थरोली, ठीक है, जो भी उसमें मैंने मेंशन किए हैं। अच्छा, उसमें जो है मैंने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का वहां पे मेंशन करना भूल गई हूँ, वो भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो वहां तक तुम लोग के जो भी टॉपिक्स अब तक हम इस वीक में डिस्कस कर चुके हैं, दे ऑल विल बी इंक्लूडेड इन योर असाइनमेंट। नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर। जी मुबीन जी। राइट शिफ्ट हो रही है, इसमें ऑक्सीजन की डिलीवर जो टिश्यू को हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज, ये मतलब समझ नहीं आया। उसमें एफिनिटी का कर रहे हैं ना, पार्शियल प्रेशर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो उसमें एफिनिटी भी उसकी जो है थोड़ी बहुत एनहेंस हो रही है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर अब राइटवर्ड शिफ्ट में हमने देखना है कि अब वो है पल्मोनरी कैपिलरीज में हमारी शिफ्ट हो रही है कि वहां पे ऑक्सीजन ऑलरेडी बहुत वाफर मिकदार में अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी भी चेंज अगर हम करेंगे ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में, तो लंग्स में ही हमारा वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। अभी इस तरह करो, खुद को अनम्यूट कर लो और म्यूट कर दो क्योंकि तुम्हारे डिस्टरबेंस आ रही है। तो उसमें जो है अब ये है कि राइटवर्ड शिफ्ट में जो है पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। अब मतलब कि लंग्स में हमारा ब्लड है, वहां पे ऑक्सीजन इज कीप ऑन एडिंग टू द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। भले आप ऑक्सीजन एक साइड से निकालते जाओ बट दूसरी साइड से उसको ऑक्सीजन मिलती जाएगी, ठीक है। तो वहां पे इतनी ज्यादा एफिनिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा हीमोग्लोबिन के पास, क्योंकि उसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन पड़ी हुई है, तो उसकी एफिनिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, वो आराम से टिश्यूज को दे देगी। लेफ्ट शिफ्ट में अब क्या मसला हो रहा है कि अब हम टिश्यू लेवल पे आ गए हैं कि वहां पे जाहिर सी बात है जो ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होती जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन यूटिलाइज होती जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो अब वहां पे जो है एफिनिटी को देखना है कि जो है ऑक्सीजन कंटेंट कम होता जा रहा है, तो अब जितने भी मॉलिक्यूल्स जो हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है, क्योंकि अब लंग से अब वो बाहर आ गया है ब्लड, तो अब वहां पे जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बचेंगे तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी उसके लिए बढ़ जाएगी। हीमोग्लोबिन चाहेगी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास रहें, वो टिश्यूज को ना जाए, ठीक है। तो वो एफिनिटी वहां पे इंक्रीज हो रही है। तो ये बस चीज याद रखनी है कि राइटवर्ड शिफ्ट में hemoglobin affinity for oxygen is decreasing, and on the left side hemoglobin affinity for oxygen is increasing। जैसे कि फीटल हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें कि वो उसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, अभी फीटस में वेल डेवलप्ड लंग्स नहीं है, ठीक है, तो वहां पे पार्शियल प्रेशर भी थोड़ा कम होता है। अब उसको पार्शियल प्रेशर 80 के करीब रखने के लिए फ्रॉम मदर इट हैज टू कैरी द ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दिस हाईएस्ट एफिनिटी वो मदर से इजीली ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है बिकॉज ऑफ द हाई एफिनिटी ऑफ द फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट हैं। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी तश्मीन, क्या क्वेश्चन है? मैम रेस्पिरेशन के हवाले से है लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, क्या पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ लो। मैम हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब किसी को कोई करंट वगैरह लग जाए तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, तो मतलब सिर्फ सर बाहर रख के बाकी मिट्टी डाल देते हैं। तो क्या मैम इससे लंग मतलब रेस्पिरेशन में मसला नहीं होता होगा कि लंग एक्सपेंड नहीं हो सकते होंगे या डायफ्राम कांटेक्ट नहीं हो सकता होगा, तो हम कोई मसला होता होगा इसमें? मतलब मट्टी उसको बिल्कुल दफना देते हो, क्या करते हो, जिंदा दफना देते मैम हो वो उसको? मैम ऐसे होता है कि सर उसका बाहर होता है मतलब हवा अच्छा में, तो बाकी उसके जिस्म पे ना मतलब मिट्टी, वो उनका ये मानना है कि मतलब इससे करंट बॉडी में होता है वो निकल जाता है।
अच्छा, वो उनका मानना है, वैसे होता है नहीं उसमें। सिंपली हमने करंट में तो ये करना है ना कि सोर्स जो है उससे हमने डिसोसिएट करना होता है। अदरवाइज अब जैसे ही बिजली के तार को पकड़ लो हाथ में, अगर उसको पकड़े रखोगे तो तुम्हें करंट लगता रहेगा। वो तार हटानी होती है, कंडक्शन को हमने रोकना होता है। बाकी अगर वो डिपेंड करता है कि आप हाउ मच कंप्रेशन हैव बीन गिवन ओवर द बॉडी, ठीक है। चेस्ट कैविटी पे अगर कंप्रेशन ज्यादा हो रही है तो डेफिनेटली इट कैन अफेक्ट दी ब्रीदिंग। लेकिन अगर वो उसमें उसको ब्रीदिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इतनी ज्यादा कंप्रेशन नहीं है, तो वो नहीं प्रॉब्लम होगी। वो डिपेंड करता है कि उसको कितना तुमने उसमें दबा के रखा है। अगर मुंह उसका बाहर है, थ्रू नोज ही और शी कैन इनहेल और एक्सहेल दी एयर, ठीक है। हाँ, ये है कि चेक्स की एक्सपेंडेबिलिटी अफेक्टेड हो सकती है, कि वो डिपेंड करता है कि उस पर कितना प्रेशर डाला जा रहा है ऊपर। सही है। जी मैम सही। मैम वो असल में ये करते हैं कि इसको यानी करंट से अलग करने के बाद यानी इलेक्ट्रिसिटी से फिर उसको यानी बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है ना। हाँ, वो मैं समझ गई हूँ, वो समझ गई हूँ तरीका, लेकिन वो ऐसे बता रही हूँ। उसका था क्वेश्चन के कंप्रेशन अगर हो रही है चेस्ट वॉल पे, तो इट कैन अफेक्ट द ब्रीदिंग। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग जो तुम लोगों ने पढ़ी है वो अफेक्टेड हो सकती है। और डिपेंड्स कि अगर तुम चेस्ट कैविटी को कंप्रेस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है फिर वो एक्सपेंशन ऑफ लंग्स में थोड़ा बहुत मसला होगा। जो हमने कंप्लायंस वर्क पढ़ा था ना, तो या टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क, वो फिर इंक्रीज हो जाएगा, कंप्लायंस कम हो जाएगा, वो वाली बात है उसमें। ठीक है। जी मैम ठीक। और कोई क्वेश्चन? मैम ये ब्लीडिंग क्यों शुरू हो जाती है जब यानी करंट वगैरह के बाद यानी नोज से मुंह से ये सारी यानी वो जाहिर ब्लीडिंग सी शुरू हो बात है, वो हमारे हेमोलिसिस हो जाती है, ठीक है। टिश्यू भी तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना, टिश्यू स्मॉल माइन्यूट कैपिलरीज जो है हमारी, वो भी डिस्टर्ब होंगी, ठीक है, रप्चर हो सकती हैं। तो इस वजह से उसमें फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। किसी को तुम लोग अभी करंट मार के आए होगे, जो इतने सवाल आज तुम उसमें से कर रहे हो, क्या करके आए हो तुम लोग हैं? मैम असल में लाइट नहीं है इसलिए फिर याद ज्यादा किया हुआ अच्छा था। अच्छा, इसलिए तुम ये सवाल पूछ रहे हो लाइट नहीं होने की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। और कोई ट्राई क्वेश्चन? करेंगे मैम ये आज।